चैप्टर नंबर 12 है एटम्स। तो in this chapter we are going to see the atomic structure. Already you have seen in chemistry, है ना? So most of the topics are known to you, but some new points we are going to learn here. तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल, पुराना मॉडल जो था, it was given by J.J. Thomson, है ना? कैसा था मॉडल वो? वाटरमेलन टाइप, watermelon. Mean electrons are embedded in the spherical atom. Electrons and protons are embedded, है ना? और plum pudding model जो था, है ना? Like cherry is embedded in the cake, है ना? But later on, Rutherford's alpha particle experiment in 1911, he did very well-known alpha particle experiment. In fact, he thought this concept first, and under his supervision, two other junior scientists, they performed this experiment, and hence the discovery of nucleus was done. Nuclear model was given by Rutherford. So we see that alpha particle scattering and Rutherford's nuclear model of atom. So what he did, a thin gold foil लिया उसने, 10 to the power minus 8 meter thick, almost single atomic layer होगा ये, very thin, almost only one atoms on the path of the alpha particle, which was, this is the source of alpha particle. These alpha particles were directed this side. Most of the particles went undeviated, very few deviated more than 1 degree, and 1 in 8,000 deviated, 1 in 8,000 deviated more than 90 degree. ठीक है, तो ये उसको 1 in ये वैक्यूम में परफॉर्म किया गया, या you can see this side also. ये same diagram को we can see that the schematic arrangement. यहाँ से alpha particle was projected on the thin gold foil, 10 to the power minus 8 meter thick. Most of them went undeviated, and ये जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर है ना, उसने डिटेक्ट किए कितने, यहाँ पर कितने आ रहे, यहाँ पर कितने आ रहे, इधर कितने आ रहे, और बैक साइड में कितने आ रहे. 1 in 8,000 was the ratio which was obtained in what is called more than 90 degree deflection, और scattering बोलते हैं उसको. Very few deviated through the large angle. इसकी स्टोरी भी ऐसे है, देखो ये जो दो साइंटिस्ट हैं ना, मार्सडेन एंड जीगर, they used to sit in the dark room under the supervision of Rutherford for 20 hours a day, and they were much frustrated. कुछ मिल नहीं रहा था उनको कि भाई अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट होके आ ही नहीं रहे थे, इधर आ रहे थे तो उन्होंने मिस किए होंगे. फिर almost all were going undeviated, थोड़े बहुत ऐसे आ रहे थे 1 degree या 2 degree, but this was the big catch. ये after 4 days of dark room sitting for 20 hours a day, then they could catch this one. So after that things changed drastically, model was changed, है ना. तो न्यूक्लियर मॉडल आया था, तो क्या था उसमें, क्या क्या इसने नोट की, चलो देखो ये भी देखते हैं. उन्होंने इकट्ठे किए सारे डेटा, तो देखा कि 10 to the power 6 जो है अल्फा पार्टिकल्स, they deviated through the very small angle, less than 10 degree angle, है ना. ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है, यहाँ पे थीटा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं, डेविएशन को एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलेंगे. About 100 particles out of millions of particles, they deviated angle 100 or more, very few, है ना, 1 in 8,000. तो they deviated more angle than 90. तो ऐसा उनको इस तरह से ग्राफ मिला, उन्होंने डाटा कलेक्ट करके ना. तो क्या फाइंडिंग थी, ये फाइंडिंग थी, कंक्लूजन क्या निकाला फिर उन्होंने, फाइंडिंग से एक बार और देख लेते हैं. बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियो, ये इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया तुम्हें. रेडियो एक्टिव बिस्मथ वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थिन फॉइल,
रेडियोएक्टिव बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल, इसकी एनर्जी क्लोज टू 5.5 MeV की एनर्जी से उनको प्रोजेक्ट किया थिन फॉइल की तरफ. Scattered alpha particles were observed by the rotable detector consisting of जिंक सल्फाइड स्क्रीन. और डिटेक्टर है ना ये जिंक सल्फाइड का, ये पूरा डिटेक्टर समझ लो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की. तो जहां भी हिट करेगा वहां पे उसमें लाइट आ रही थी, ये कहाँ कहाँ हिट कर रहे, तो मोस्टली यहीं पे हिट कर रहे थे सब. वेरी फ्यू केम बैक साइड में. तो ओनली 0.14% of alpha particle is scattered by more than 1 degree angle. मतलब 99.9% लेस देन 1 डिग्री पे डिविएट हुए, ऑलमोस्ट नो डिविएशन. तो कितना पेशेंस चाहिए उनको डिटेक्ट करने के लिए, है ना. तो 1 in 8,000 डिटेक्ट डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री. तो आफ्टर दिस findings he came up with these four points. Rutherford argued that positive charge of atom is concentrated at center called nucleus because अगर प्लम पुडिंग मॉडल होगा तो अल्फा पार्टिकल इज 4 times हेवियर, तो प्रोटॉन उसको वापस नहीं भेज पाएगा. एंड इट इज लाइक टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल. हैवी क्रिकेट बॉल होती सॉलिड वाली, इसको हिट करके बाउंस बैक हो सकती है, क्या टेनिस बॉल को हिट करके बाउंस बैक हो सकती? नो. तो यहाँ पर हैवी होनी चाहिए, ऑल द प्रोटॉन शुड बी टुगेदर, देन ओनली दे कैन रिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैक. तो गोल्ड, दैट वाज द बिग डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसने की थी. ही सजेस्टेड दैट अच्छा इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का भी आइडिया उसने दिया. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग लाइक प्लैनेट्स डज इन द केस ऑफ सोलर सिस्टम. प्लेनेटरी मॉडल दिया उसने, प्लेनेटरी मॉडल. दिस वाज वेरी बिग थिंकिंग, है ना. जैसे उसने देखा प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा. वेरी वेरी बिग थिंकिंग इट वाज. तो ये था, ठीक है, सिमिलर टू द प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना. साइज ऑफ द न्यूक्लियस का भी उसने, अल्फा पार्टिकल कितने क्लोज जा सकता है उससे भी आइडिया लगाया उसने. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power -15. साइज ऑफ द एटम, अच्छा यहाँ पे 10 to the power -10 आएगा. Which is about 10,000 to 1 lakh times larger. इतना डिफरेंस है, देखो ना. तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. जैसा सोलर सिस्टम में एम्प्टी स्पेस है, प्लेनेट बहुत दूर दूर है, वैसे इसमें भी रहता है. इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर इवन मच लार्जर डिस्टेंस देन द प्लेनेट. जितनी दूर पे अर्थ है ना, उससे ज्यादा दूर पे है इलेक्ट्रॉन. अगर कंपेयर करें सन एंड अर्थ को, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस और मोर, इट इज 100 times मोर आती है. अर्थ इज 100, मतलब इलेक्ट्रॉन इज 100 times मोर देन द अर्थ लोकेटेड एज कंपेयर टू सन इन द सोलर सिस्टम. इतना बिग डिफरेंस है एटम्स के अंदर, इतना एम्प्टी स्पेस है. या फिर ऐसे एग्जांपल देते हैं, पिन, एक पिन हेड को न्यूक्लियस समझो. तो क्लासरूम जो है, क्लासरूम से बिगर जो है साइज विल बी द एटम इफ पिन हेड इज इक्वल टू न्यूक्लियस. और फुटबॉल को रखो फुटबॉल फील्ड में, तो एटम विल बी 10,000 फुटबॉल उसके ऊपर और रखनी पड़ेगी, 10,000 से 1 lakh. दैट मच बिग विल बी द एटम, है ना. तो मतलब लॉट ऑफ फ्री स्पेस, एम्प्टी है पूरा. व्हाटएवर सॉलिड वी आर सीइंग, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, वॉल, ये सब एम्प्टी है. यू कैन क्रॉस द वॉल क्रॉस, इतना एम्प्टी है. वॉल के ऊपर फोर्स लगाओ तो दूसरी तरफ निकल जाओगे, है ना. हम जो देखते हैं मूवीज वगैरह में, है ना, हॉरर मूवीज में, वैसा टाइप सिचुएशन हो सकती है. बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस रिपेलिंग एक्शन, इसलिए हम लोग वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहे. अदरवाइज वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं हम लोग भी. That much empty space is there inside the solids which we see. ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया, ये हो गया. और देखो ये अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी देखते हैं उसकी.
जो बिल्कुल हेड ऑन आएगा, ये न्यूक्लियर, दिस इज द न्यूक्लियर, जो अल्फा पार्टिकल ऐसे आएगा तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, जो थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस पे ऐसे डिविएट होगा, थोड़ा और लार्जर डिस्टेंस पे तो उसका डिविएशन थोड़ा और कम हो जाएगा, और लार्जर डिस्टेंस पे डिविएशन और कम हो गया, लाइक दिस, मोर द डिस्टेंस लेस द डिविएशन लेस द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये वाला बहुत अनडिविएटेड चला जाएगा। तो कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दूर वाला तो ज्यादा दिखा देंगे ऐसे डिविएशन, पास वाला ऐसे दिखाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसे भी दिखा देते पाथ, अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेलिंग होगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो रिपेलिंग एक्शन नहीं होंगे, और जितना ज्यादा पास में है उतनी ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा। तो ट्रेजेक्ट्री किस पे डिपेंड करती है? इम्पैक्ट पैरामीटर पे। अभी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है उसको पढ़ते हैं हम। इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिनोटेड बाय बी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये होता है, ये लाइन जो है, जो कि इसके सेंटर से जा रही है, और ये वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की, इनके बीच का गैप है ना, जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जब दूर है, पास में आने से गैप बढ़ रहा है, ये इनिशियल मतलब व्हेन इट इज अवे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ये वाली, सपोज यहाँ पे है तो ये इतना इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगा, ये वाले पाथ के लिए ये हो जाएगा, ये वाले पाथ के लिए ये हो जाएगा, और ये वाले पाथ के लिए 0 हो जाएगा, ये तो उसी लाइन के अलॉन्ग आ रहा है। इफ बी 0 मतलब इसी लाइन पे आ रहा है वो अल्फा पार्टिकल, तो थीटा कितना हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा, थीटा विल बी पाई, इट विल रीबाउंड। इफ बी इज वेरी लार्ज, यहाँ पे देखो ये बी इज वेरी लार्ज, तो अनडिविएटेड चला जाएगा ये, थीटा विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। वेरी लार्ज को इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितनी होगी? थीटा को एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। तो बी अगर 0 है तो थीटा 180 हो जाएगा, और बी वेरी लार्ज है तो थीटा 0 होगा, डिविएट ही नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं देखो बता रहा था तुम लोगों को। ओके, ये देख लो, तुम इसको देख लो, इसके ट्रेजेक्ट्री हमें करेक्टली पता होनी चाहिए ना, और इम्पैक्ट पैरामीटर भी लर्न करना पड़ेगा, ट्रेजेक्ट्री के पाथ भी देखने पड़ेंगे। रिपल्सिव फोर्स से आइडिया लगा सकते हैं, जितना क्लोज है उतना ज्यादा थीटा आएगा, जितना सेंट्रल लाइन के पास में है अल्फा पार्टिकल उतना ज्यादा डिविएट होगा, उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो ये अर्थ का बताया उन्होंने, सन एंड अर्थ का, सन का साइज कितना दिया है, ऑर्बिट कितनी दी है, 1.5 इंटू 10^11। तो ये डिजिट छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें भी हम डिजिट नहीं लेंगे, 10^11। और रेडियस ऑफ सन कितना दिया, 10^8 का दिया, तो डिवाइड किया तो दिस कम्स 10^3 के ऑर्डर का आ गया। और इलेक्ट्रॉन्स का देखो, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट 10^-15, और न्यूक्लियस का साइज 10^-10 के ऑर्डर, सॉरी न्यूक्लियस का 10^-15 के ऑर्डर का है रेडियस, और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ये 10^-10 के ऑर्डर का है, इसका साइज 10^-15 है। इसका रेशो देखो 10^5 आ रहा है, तो 100 टाइम्स मोर। तो जो सन एंड अर्थ के बीच का जो गैप है उससे भी ज्यादा गैप है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। अगर सन की डायमेंशंस और न्यूक्लियस की डायमेंशन और इनके जो अर्थ की डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस ली जाए तो रेशियो हैपन टू बी 100 टाइम्स मोर। अर्थ अगर 100 टाइम्स और दूर चली जाए सन से
तब जो है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का जो ऑर्बिट आएगा उसके साथ मैच होगा उसके. दैट इज that much huge empty space is there in the atom. Almost 99 जो न्यूक्लियस का साइज है, मास जो है न्यूक्लियस में 99.9% है. साइज में उससे भी एटॉमिक साइज से वो 1/10,000 टाइम्स है, से लेकर 1/1 लाख टाइम्स है. इतने फैक्टर से कम है वो. मास पूरा न्यूक्लियस में, बट साइज के मामले में बहुत छोटी है न्यूक्लियस. ठीक है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है ना. It implies that atom contains it implies that an atom contains a much greater fraction of empty space than our solar system does. Solar system से भी much greater than empty space है, for the same scale in that ratios. All right. तो इसमें देखो कभी कभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में पूछते हैं. क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? ये न्यूक्लियस है ना, इसमें कितने प्रोटॉन है? जेड. जैसे अल्फा पार्टिकल आया और जो हेड ऑन आ रहा है उसके सेंट्रल लाइन की तरफ, तो वो जो है कहीं ना कहीं पे रिपेल एक्शन, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा. तो कितना पास में आएगा उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट. कैसे निकाले? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल कम्स टू द इंस्टेंटेनियस रेस्ट. मिनिमम डिस्टेंस होता है जब अल्फा पार्टिकल हेड ऑन आता है, उस समय कितना पास तक आ सकता है. ये भी कैलकुलेशन उसने रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया, ऑलमोस्ट करेक्ट कैलकुलेट किया. देखो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? k q1 q2/r. q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज इतना, दोनों जेड जैसे दिख रहे हैं. अल्फा पार्टिकल को 2 ले और गोल्ड न्यूक्लियस को जेड ले लो. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पे 2 ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, इसमें जेड है ना. गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर कितने चार्ज रहते हैं? प्रोटॉन कितने रहते हैं? जेड के इक्वल. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर नॉट को इधर ले आओ. आर नॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस, और हाफ mv² को नीचे ले आओ. तो ये फार्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए. इसमें वो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, जनरली ऐसे आएंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल्ड? ये वेलोसिटी डबल हो गई है, वेलोसिटी डबल हो गई तो नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 रह जाएगा. और इफ काइनेटिक एनर्जी डबल, ये पूरा डबल हो गया तो 1/2 आंसर आएगा. इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल तो हाफ हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस आधा हो जाएगा. और अगर डबल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो और पास में आएगा. दैट विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल. टच नहीं कर पाता एक्चुअली, वो टच करने के लिए बहुत हाई वेलोसिटी चाहिए, हाई रिपल्सिव फोर्स होता है ना, उसके लिए हाई एनर्जी का पार्टिकल चाहिए. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आए हुए हैं. ठीक है, ये समझ में आएगा. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे. इधर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले नीचे आर नॉट होता है, स्क्वायर नहीं होता है. इसको इधर ले आएंगे, ये टर्म नीचे ले आएंगे. मैंने पूरा नहीं लिखा है. इफ यू वांट आई कैन राइट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस when alpha particle comes to instantaneous rest, when it is moving head on towards the nucleus. वो सब अपने आप लिख लो.
when it is moving head on towards the nucleus. ठीक है, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी टर्म तो उसमें चेंज नहीं हो सकते। हाँ भाई, अगर तुमने चेंज कर दिया, अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन कर दिया, तो फिर ई लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। बोला जाए अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन कर दो और स्पीड डबल कर दो, यहाँ पे फिर यहाँ पर ये 2 भी हट जाएगा ना, तो फिर तुम्हारा रेशियो कुछ और आ जाएगा। दोनों फैक्टर लेने पड़ेंगे। बाकी कॉन्स्टेंट में चले जाएंगे। पहले कितना 2/1 था, अगर तुमने अल्फा पार्टिकल कर दिया, स्पीड भी डबल कर दी, तो 1/4 है ना। तो ये कितने टाइम्स हो गया रेशो? पहले 2/1 था, 1/4, तो हाफ आ जाएगा। इस तरह से जो भी चेंजेस किए हैं, तो यू शुड पहले तो करेक्ट फार्मूला लर्न करके रखना है, देन यू मेक द चेंजेस इन द फार्मूला एंड डू इट। देखो, ये रदरफोर्ड ने जो अपने कैलकुलेट मॉडल दिया, उस मॉडल को क्लासिकल मॉडल बोला गया, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट कि एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें तो एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस लेटर ऑन। ड्रॉबैक थी उसमें एक, बट मॉडल वाज करेक्ट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन। उसका एक्सप्लेनेशन फिर किसने दिया? बोर्स ने दिया। लेकिन बोर्स ने जो अपने 3 पोस्टुलेट दिए, ही कुड नॉट प्रूव देम, उसको प्रूव किया डी ब्रॉगली ने। तो इस तरह से एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट किया और उसको बाद में प्रूव करके दिखाया। इन्होंने मॉडल दिया, पोस्टुलेट दिए, प्रूव वाज डन। इसने जो मॉडल दिया इट वाज वेरी करेक्ट, बट इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसका कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने रेडियस निकाली। रेडियस कैसे निकालेंगे कि I mean centripetal force is provided by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो अट्रैक्ट करेगा इसको नीचे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, k q1 q2/r², है ना। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही हमें सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन भी होती है, तो माइनस नहीं लिया जाता इसमें। तो रेडियस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगी रेडियस का फॉर्मूला। एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर को इधर ले, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। मास पे डिपेंड करेगा ये इसका रेडियस, बट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी v² को इधर ले आओ, आर को नीचे भेज दो। रूट भी लेना पड़ेगा, v² है तो रूट लेना पड़ेगा, ये मॉड ये आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² v² की ये पूरी वैल्यू एज इट इज पुट कर दो यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी में k q1 q2/r, तो ये आ जाएगा, है ना। दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाती है, माइनस में आती टोटल एनर्जी। ये टर्म्स दोनों में सेम है, ध्यान से देखो, ये डिजिट का डिफरेंस है और माइनस का डिफरेंस। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, माइनस भी है, तो दोनों ऐड कर दो, तो माइनस e²/8πε0 आ रहा है। माइनस साइन मींस इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो ये एक ही फॉर्मूले से सारे निकाल लिए हमने। किससे? एक तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाले से, which is obtained by electrostatic force of attraction, k q1 q2/r²। r आ गया, उसी से v आ गया, उसी से काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी आ गई। बट दिस इज स्टिल, इसमें n के टर्म्स में नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म्स में नहीं है, जो कि आगे आएंगे। ये विदाउट n है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 EV energy is required
to separate the hydrogen atoms into proton and electron. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी. कैलकुलेट द ऑर्बिटल रेडियस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. इतनी एनर्जी लगेगी, मतलब उतनी एनर्जी से बाउंड होगा वो, माइनस माइनस उतनी एनर्जी से बाउंड होगा. तो माइनस कर दिया और इसमें जूल में कन्वर्ट कर लिया इससे मल्टीप्लाई करके, तो जूल में आ गया. और एनर्जी का फार्मूला क्या निकला, ये वाला. और टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी. ये पुट कर दी यहाँ पर. यहाँ से आर मिल जाएगा, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है. कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो इतना आएगा. ठीक है. और v के फार्मूले में पुट कर दिया आर की वैल्यू, तो ये आ गया. तो ये जो है क्लासिकल थियरी से बोलेंगे उससे निकाला उसने, विच इज करेक्ट एक्चुअली. ये बाद में क्वांटम थ्योरी से निकाली गई, इतनी ही आई. कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो यू हैव टू. थर्ड एग्जांपल है युक्कन थी सीधे. ये फार्मूले में आर की वैल्यू ये दिया है, आर निकाल लिया, फिर उससे वी निकाल लिया. थर्ड एग्जांपल 12.3. ठीक है. ये भी ऐसे ही है. ना इसमें ड्रॉबैक क्या थी, देखो. व्हाट वाज द ड्रॉबैक, कि उसको पूछा कि भाई ये चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन. इट शुड रेडिएट द एनर्जी. एनर्जी रेडिएट करना चाहिए. एक्सीलरेट ऑल एक्सीलरेटेड चार्जेस विल रेडिएट द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा था कि रेडिएट एक्सीलरेटेड चार्ज विल इमिट द रेडिएशन. तो ये भी एक्सीलरेटेड है. सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के उसकी रेडियस कम होती जाएगी, बाद में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन. तो उसके रेस्क्यू के लिए आए मिस्टर बोर्स. उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए फॉर दिस हिज थियरी. जो उन्होंने फाइंडिंग्स थी उसकी, प्लेनेटरी मेथड, प्लेनेटरी सिस्टम, 3 उसने वो दिए, है ना. तो किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से होते हैं, दोज हु हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो हीलियम प्लस बन जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं. प्रोटॉन न्यूक्लियस में 2 रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक जो बचा है वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, दूसरे प्रोटॉन का इफेक्ट रहेगा. लिथियम में 3 होते हैं, उसमें से 2 निकाल दो. बेरिलियम में 4 होते हैं, उसमें से 3 निकाल के 1 रखो, तो 3 प्रोटॉन का इफेक्ट बचेगा. यहाँ पे 2 प्रोटॉन का इफेक्ट बचेगा, यहाँ पे 1 प्रोटॉन. तो इस तरह के हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं जिसमें ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाए. उसके लिए उसने मॉडल दिया. ठीक है. तो क्या मॉडल है, देखो बोर्स का. पहला मॉडल क्या, पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट. सभी ऑर्बिट में नहीं रह सकते, सर्टन ऑर्बिट्स में रहते हैं. और अच्छा, उसको खुद भी नहीं पता था क्यों रहते, बट उसने उसको इंट्यूशन था. डी ब्रॉग्ली ने प्रूव करके दिखाया क्यों रहते हैं, वो आगे लास्ट में है इस चैप्टर में. व्हाट आर दीज स्टेबल ऑर्बिट्स, है ना. स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं उनको, स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स है. क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं वो हम देखेंगे बिल्कुल लास्ट में. ठीक है. बट हिज पोस्टुलेट वाज वेरी करेक्ट. विदाउट इमिशन, जब तक उस ऑर्बिट में रहेंगे तब तक इमिट नहीं करेंगे. उसके नहीं, उस ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट चेंज हो गई तब रेडिएशन इमिट करते हो. तो फर्स्ट वन दिस. सेकंड वन क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है. एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. Angular momentum of electron is mvr, which is equal to nh upon 2 pi. h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल 1 times 2 times 3 times, जिसको क्वांटाइज बोलते हैं. एंड इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका h upon 2 pi का 1 time 2 time 3 time.
पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ भी क्वांटाइज कांस्टेंट है, उसी ऑर्बिट में रहेंगे जिसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π है, या उसका 1 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स, वही स्टेशनरी या स्टेबल ऑर्बिट्स होती है। उसमें रेडिएशन नहीं करेगा, जब तक उसमें रहेगा रेडिएशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आगे पढ़ेंगे हम। थर्ड वन क्या था, जब वो ऑर्बिट चेंज करता है तो जितनी इनकी एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी डिफरेंस का फोटोन इमिट होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर लोअर एनर्जी ऑर्बिट, सबसे अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है सबसे कम एनर्जी होती है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती, दूर वाले की ज्यादा होती। तो जब आउटर से इनर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी डिफरेंस होता है, उतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन लिमिट होता है, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा आता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ये जो रदरफोर्ड मॉडल से विच ही कुड नॉट एक्सप्लेन, लाइन स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ये लगातार इसकी एनर्जी कम होती जानी चाहिए और यहाँ से लगातार फोटॉन्स निकलने चाहिए लेसर एंड लेसर फ्रीक्वेंसी के। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, रेडिएशन लगातार होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है बिकॉज ऑफ दीज स्टेशनरी और स्टेबल ऑर्बिट्स। ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनकी वजह से एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, इतनी एनर्जी का हमेशा फोटॉन मिलेगा पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर गैस के लिए हो सकते हैं, या फिर कोई सॉलिड गैसियस फॉर्म में है तो उसको हमेशा उसका वो फिंगरप्रिंट होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा मिलेगी। हाइड्रोजन गैस के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ हमेशा मिलेगी, या दूसरी वेवलेंथ मिल सकती है, बट वही मिलेंगी हमेशा। एक्साइटेड स्टेट में है तो दूसरी वेवलेंथ मिलेगी, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है कुछ मिलेगी, बट हमेशा वो मिल जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तो वही मिलेगी, कंटिन्यूअस नहीं मिलती, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। दैट वाज द बिग डिस्कवरी, है ना, कि भाई लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, कि स्टेबल ऑर्बिट्स है। तो ये हो गया। तो ये दो पे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है या कांस्टेंट है, जिन जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन टिक सकता है, नहीं तो वो नहीं टिकेगा वो, और ऑर्बिट चेंज करेगा तो उतनी एनर्जी डिफरेंस का फोटोन मिलेगा, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं, उतनी एनर्जी का ही मिलेगा, इसमें कोई लॉस नहीं होता। सपोज ग्रीन कलर मिल रहा है हमेशा एक पर्टिकुलर गैस के लिए, तो वो वही मिलेगा कलर हमेशा। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में है तो दूसरा कलर मिलेगा, अगर हायर एक्साइटेड स्टेट में तो वो जो जितनी सीरीज मिलेंगी वही मिलेगी, उसमें कभी चेंजेस नहीं होंगे। उसका फिंगरप्रिंट होता है वो, उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसे आइडेंटिफाई होती है ना। सन से जो गैसेज आ रही है यहाँ पर कुछ, अब जो वही, अब ये जो है ये रेडिएशन है, इसका रिवर्स अब्जॉर्प्शन होता है, इसको एनर्जी देंगे, यहाँ से वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा या थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, तो उतनी पर्टिकुलर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर व्हाइट लाइट हमने इमिट की, इसके ऊपर से पास की, तो कुछ कलर्स मिसिंग हो जाएंगे, है ना। सन से जो कलर्स आते हैं कुछ मिसिंग कलर्स हैं, है ना, कुछ मिसिंग, समझ लो कुछ मिसिंग वेवलेंथ है, तो उससे पता लगता है कि उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी गैसेज हो सकती है, या किसी प्लेनेट की या किसी दूसरे स्टार की, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको, उससे पता लग जाता है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, कहाँ पर कौन सी गैसेज प्रीडोमिनेंट है। ये 3 पोस्टुलेट में 2 याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये रेडियस का एन के टर्म्स में फार्मूला बनाएंगे, एन के टर्म्स में। पिछला जो रेडियस था उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं था, इसी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, एन के टर्म्स में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, ऑलमोस्ट हो जाएगा ये, छोटे छोटे, ठीक है। कुछ लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, भागने के इंतजार में रहते हैं। ओके, चलो फटाक से भाग जाते हैं, चलो मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके बाय, चलो थैंक यू।